جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بھائی کون؟ جی خیریت سے؟ ہاں جی میں یونس آندرا سے یونس بات کر رہا ہوں۔ ہاں بتائیے بھائی۔ جی یہاں پر تو ہماری تاخیرات چل رہی ہے، تھوڑا بات یہ ہے کہ بریلوی حضرات سے تھوڑا بات چیت ہو رہی، گفتگو ہو رہی تھی کہ انہوں نے مجھے فیس بک میں انہوں نے پوسٹ کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اپنے نام پر، ماشاء اللہ۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا وسیلہ لے کے زندہ کرتے تھے، لیکن یہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے نام پہ زندہ کرتے تھے۔ انہیں میں بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، بولا میں ان کو، لیکن انہوں نے سمجھتے نہیں ہے اللہ کے یہاں پر۔ یہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے مردوں کو، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی اپنے نام سے زندہ کر رہے ہیں۔ جی یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ میں آپ کو تفصیلات کے ساتھ تھوڑا جاننا چاہ رہا ہوں، کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ جی بھائی، سب سے پہلی بات تو بھائی ایک چیز آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بہت سارے لوگ مطلب بھائی ایسا بولتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث ہیں نام نہاد ہیں، انگریزوں کی اولاد ہیں، انگریزوں کی پیداوار ہیں، اور یہ لوگ ولی اللہ کے مطلب گستاخ ہیں، ولی اللہ کو نہیں مانتے، ولی اللہ کی شان میں الٹا سیدھا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں آپ کے علم کے لیے بھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ، ٹھیک ہے، مطلب جن کو لوگ مطلب بھائی پیرانے پیر اور غوث اعظم بولتے ہیں، وہ الحمدللہ ایکچوئل میں اللہ کے ولی ہیں، اصلیت میں اللہ کے ولی ہیں، اور ہم ان کو الحمدللہ اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ اور اگر کسی کو جاننا ہے کہ اہل حدیثوں کے ولی اللہ کون ہے، تو الحمدللہ ہمارے جو اہل حدیثوں کے جو اللہ کے ولی ہیں وہ ہمارے پیارے صحابہ ہیں، اور صحابہ کے بعد کے زمانے میں بھائی اگر کوئی پوچھے تو ان میں سے ایک نام بھائی شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے تعلق سے مطلب لوگوں نے بہت ساری باتیں مطلب اتار رکھی ہیں اور تعریف کر دی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جیسے بھائی فار ایگزامپل جو انجیل تھی، ٹھیک، انجیل آسمانی بھائی کتاب تھی، اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو بھائی وہ دیا تھا، ٹھیک، آسمانی کتاب تھی، لیکن بعد میں بھائی وہ بات کے مطلب جو لوگ آئے انہوں نے اس میں مطلب بھائی اپنے الفاظ ڈال دیے، ٹھیک ہے بھائی، تعریف کر دیے۔ تو اب جو آج کل کی جو بائبل ہے پریزنٹ، تو آج کل کی بائبل میں اللہ کے بھی کلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کلام ہے، اس دور کے جو مطلب بھائی وہ اتہاس کار تھے ان کے بھی کلام ہے، اس کے بعد کے جو پادری تھے چرچ کے انہوں نے اپنے الفاظ ڈال دیے۔ تو کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو جو آج کی جو بائبل ہے پریزنٹ ٹائم کی، وہ انجیل کی ایک دم بھائی وہ بگڑی ہوئی بھائی شکل ہے، ٹھیک، مطلب اس میں مطلب بھائی وہ ملاوٹ ہوگی، ٹھیک۔ اسی طریقے سے گنیت الطالبین جو ہے بھائی اس میں بھی ملاوٹ ہو گئی ہے، ٹھیک۔ اب بھائی دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ الحمدللہ اہل حدیث تھے اور وہ حنبلی مسلک کے تھے، ٹھیک۔ اب لوگ کہیں گے یار حنبلی بھائی وہ مقلد تھے، تو وہ بھائی وہ مقلد بھائی وہ نہیں تھے، نہ ہی وہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ کی بھائی وہ تقلید کرتے تھے، کیونکہ بھائی وہ جس امام کے مسلک پہ تھے وہ امام خود بھائی اہل حدیث تھے، اور انہوں نے خود لوگوں کو روکا تھا کہ دین میں کسی کی تقلید نہ کرنا، اور نہ میری اور نہ امام اوزاعی کی، نہ فلاں کی، نہ فلاں کی، تو وہ خود میرے بھائی تقلید سے روک رہے ہیں، تو بھلا کوئی دوسرا انسان ان کی بھائی تقلید کیسے بھائی وہ کر سکتا ہے، ٹھیک۔ اب آتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جو تھے الحمدللہ پیرانے پیر، ان کی تعلیم، ٹھیک، تو بھائی دیکھیے اگر آپ ان کی پوری میرے بھائی وہ سیرت کا مطالعہ کریں گے اور ان کی کتابیں آپ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ بھائی جو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تھے وہ الحمدللہ بھائی وہ شرک اور بدعت سے پاک تھے، لیکن لوگوں نے ان کے نام سے اتار دیا کہ ہاں قوالی کرنا جائز ہے، تعویذ گنڈے پہننا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب جیسو ابھی ایک واقعہ آپ نے بتایا کہ وہ مطلب بھائی وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اپنی مدد سے، مطلب اللہ کی مدد سے عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، اور لوگوں کے جو کوڑ ہو گیا تھا، بیماری ہو گئی تھی، اس کو ٹھیک کیا اللہ کی مدد سے، لیکن عبد القادر جیلانی رحم اللہ
माज़ अल्लाह नौज़ बिल्लाह, मतलब वो ईसा अलैहिस्सलाम से भी बड़े हो गए। उन्होंने बिना अल्लाह की मदद के अपनी मतलब पावर से उन्होंने मुर्दों में जान डाल दी। तौबा तौबा, ये तो बदतरीन अकीदा है और एक अल्लाह के वली की शान में एक बहुत बड़ी तोहमत है, गुस्ताखी है, झूठ है। ठीक, और झूठों पे अल्लाह की लालत हो। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। और भाई ये अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह को तो ये जो मतलब कहते हैं गौसे आजम और पिरानी पीर, ये लोग भाई खुद उनकी तालीम को नहीं मानते। ठीक है, वो मेरे भाई वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी भाई वो किताब में गुनियतुत तालिबीन के सफ़ा नंबर 205 पे लिखते हैं कि अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है असाबुल हदीस। ठीक, यानी कि अहले हदीस। और उनके ताल्लुक से आता है कि वो नमाज में रफादैन भी करते थे भाई, वो सीने पे हाथ भी बांधते थे, आमीन जोर से बोलते थे, इमाम के पीछे सूरे फातिहा पढ़ते थे। तो इनके बरेलवी आलिम भाई इसका आंसर देते हैं, वो मतलब वो इसलिए रफादैन करते थे क्योंकि वो मतलब भाई वो हम्बली थे। तो ये कौन सा दोगलापन है कि अगर कोई शाफी रफादैन करे तो वो जायज है, अगर कोई हम्बली रफादैन करे तो वो मतलब जायज है, लेकिन अगर कोई इसलिए रफादैन करे क्योंकि अल्लाह के नबी ने किया और अपने आखिरी जमाने तक किया, और अल्लाह के नबी से तर्के रफादैन किसी भी एक भी सही हदीस से साबित नहीं है, अगर हम इसलिए रफादैन करें तो हम अंग्रेजों की औलाद। तो ये दोगलापन है। ठीक, अब गुनियतुत तालिबीन की जो बात आपने भाई जो मतलब बताई है वो आपको थोड़ा हम बता देते हैं। ठीक, आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आपको जवाब देने में आसानी रहे। ठीक है, वही ये लोग मतलब वहाँ पर अल्लाह कुरान में अल्लाह साफ साफ बोलता है कि हम अल्लाह के नज़्म से मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, लेकिन यहाँ ये बोलते हैं कि मेरा नाम से मैं जिंदा करता हूँ। नहीं, झूठ है मेरे भाई, झूठ है। हाँ जी, वही कि कितनी बड़ी तौहीन कर रहे हैं अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नहीं भाई, ये जो तौहीन है भाई, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भाई नहीं की है। ठीक है, ये उनके बाद वालों ने उनके नाम से मंसूब भाई कोई बातें उतार दी हैं, क्योंकि जो गुनियतुत तालिबीन है या जो और जो किताबें हैं, ठीक, वो कोई आसमानी किताब थोड़ी ना है भाई। अल्लाह ताला ने जो भाई वो गारंटी ली है सेफ्टी की, वो अल्लाह का कलाम कुरान की ली है कि इस कुरान में कोई भी छेड़छाड़ भाई नहीं हो सकती। अल्लाह ताला इसकी सेफ्टी करेगा, हिफाजत करेगा। लेकिन गुनियतुत तालिबीन है, ठीक है, इसमें बाज बातें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, और जो कुरान हदीस से साबित है उसको हम लोग मानते हैं। ठीक, अब जैसे भाई अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, मतलब ये गुनियतुत तालिबीन में आप लोग कहते हैं रफादैन है और वो अहले सुन्नत अहले हदीस है, तो आधी बात तो आप लोग लेते हैं, और भाई उसी गुनियतुत तालिबीन में उतरा हुआ है कि कव्वाली करना मतलब जायज है, उर्स करना जायज है, तावीज पहनना जायज है, तो आप इनको क्यों नहीं मानते? और गुनियतुत तालिबीन में उतरा हुआ है 20 रकात तरावी मतलब भाई सुन्नत है, आप इसको क्यों नहीं मानते? तो एक मेरा भाई एक छोटा सा एकदम भाई एक एग्जाम्पल है, जो मेरे भाई अगर कोई 5वीं का भी अगर बच्चा होगा, 10वीं का भी बच्चा होगा, 12वीं का भी बच्चा होगा, भाई वो जान जाएगा कि हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं। एक भाई हमको रोड पे दीवार मिली, अब दीवार पे बातें भाई उतरी हुई है 4। पहली लाइन भाई जो पहली लाइन है उस पर उतरा हुआ है कि बड़ों का आदर करो। दूसरी जो लाइन है भाई वो है कि बच्चों को प्यार करो। तीसरी जो लाइन है उसमें उतरा हुआ है कि अपनी बीवी को मारो। और चौथी जो लाइन है उसमें उतरा हुआ है चोरी करो। तो अब अगर मैं कहूँ कि नहीं मानना है तो सारी बात मानो, और ना मानना है तो चारों बात ना मानो, तो ये दोगलापन हो जाएगा। जो दो बातें सही हैं भाई हम उसको मानेंगे, और जो बातें जो बाकी बातें गलत है उसको नहीं मानेंगे। तो ये बेसिक उसूल है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह के ना तो हम मुकल्लिद हैं, ना हम उनकी अंधी पैरवी करते हैं। जो बातें उनकी कुरान हदीस से साबित है हम उसको मानते हैं, और जो कुरान हदीस से टकराती है, जो उनके नाम से मंसूब भाई वो लोगों ने कर दिया है अपने अल्फाज डाल के, हम उसको नहीं मानते हैं। और भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह की आपको तालीम में आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। ठीक है भाई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह ने फरमाया, मेरा अकीदा वही है जो सहाबा और सलफ सालीन का अकीदा था। ठीक, जी। और ये उतरा हुआ है ये सियार अलाम अन नबुला, ठीक है, जिल्द, और इसकी मतलब जो भाई वो जिल्द है वॉल्यूम नंबर भाई 20 है, और पेज नंबर है 442। और भाई ये गुनियतुत तालिबीन तो एक किताब है ये, बाकी जो किताबें हैं उनमें भी इनके अक़वाल आए हैं। ठीक है, और
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे ऊपर इत्तबा लाजिम है और नई चीज इजाद करना नहीं, और तुम पर सलफ सालीन के मजहब तरीके पर अमल करना लाजिम है और वही सीधा रास्ता है जो तुम्हें अपनाना चाहिए। अल फतुल रब्बानी पेज नंबर 35। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह फरमाते हैं ए ईमान वालों, ठीक, ए ईमान वालों पर लाजिम है कि वो सुन्ना की और जो सुन्ना है और जो जमा पर है उसकी पैरवी और इत्तबा करें। सुन्ना वो है जिसे रसूल अल्लाह ने सुन्ना होने का ऐलान किया और जमा वो है जिसपे सहाबा की रजामंदी यानी कि इजमा हो गया। गुनियतुल तालिबीन, ठीक है, जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 165। तो मेरे भाई वो खुद मेरे भाई तकलीद का कहीं अल्फाज ही नहीं ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं इत्तबा करो, सुन्नत को फॉलो करो। तो वो भाई इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह के भाई वो मुकल्लिद कैसे हो सकते हैं, उनकी तकलीद कैसे कर सकते हैं? पहले के लोग जो अपने नाम के आगे भाई हनफई, मलकई, शाफई, हम्बली भाई वो लगाते थे, वो एक निस्बत होती थी कि जो भाई वो फुरूरी मसाइल हैं उनमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह की राय इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह की राय से मिलती थी। तो इस माने में वो हम्बली थे, वो उनके मतलब वो मुकल्लिद नहीं थे, उनकी अंधी तकलीद नहीं करते थे, ठीक है। और भाई ईमान के ताल्लुक से तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह ने फरमाया कि हमारा अकीदा ये है कि ईमान जुबान की गवाही है और दिल का इकरार है, ये इताअत से बढ़ता है और नाफरमानी से घटता है, ये इल्म से मजबूत होता है और जहालत से कमजोर होता है। गुनियतुत तालिबीन वॉल्यूम नंबर 1 और पेज नंबर 135। अब बताइए, वो खुद कह रहे हैं कि जो ईमान है, ठीक, वो भाई वो जबान की गवाही है और दिल का इकरार है और ये इताअत से बढ़ता है, इताअत से, तकलीफ से नहीं, और नाफरमानी से घटता है, और ये इल्म से मजबूत होता है और जहालत से कमजोर होता है, और मुकल्लिद तो जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। और सुनिए भाई शिर्क और बिदत के हवाले से क्या कहते हैं, ठीक। भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह तौहीद को फैलाने और शिर्क और बिदत को तबाह करने वालों में से थे। उनके कौल इस तरह से हैं, लोगों को सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए और अल्लाह के रसूल पर सलाम भेजना चाहिए और आखिर में अल्लाह से अपनी जरूरतें मांगनी चाहिए। यानी कि भाई वो दुआ का तरीका बता रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद पढ़ो और आखिर में अल्लाह से अपनी जरूरतें मांगो। बुनियतुत तालिबीन वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 92। और आगे लिखते हैं कि अल्लाह के सिवा और आप समझ रहे हैं, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना हराम है। तो अगर किसी को कसम खानी है तो वो सिर्फ अल्लाह की भाई वो कसम खाए, वरना वो खामोश रहे। बुनियतुत तालिबीन वॉल्यूम नंबर 1 सफा नंबर 92। और आगे लिखते हैं कि जब आप कब्र की जियारत के लिए जाएं तो फिर अपने हाथ ऊपर यानी कि कब्र पर ना रखें, यानी उन्हें चूमने, क्योंकि ये यहूदों की आदत है। ना ही कब्र पर बैठें या उन पे टेक लगाकर बैठें, फिर अल्लाह से अपनी जरूरतें मांगे। अल गुनियतुत तालिबीन वॉल्यूम नंबर 1 सफा नंबर 91। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि पैरवी करें और इत्तिबा करें और नई चीजें दीन में इजाद ना करें और इख्तिलाफ ना करें, पैरवी करें और नाफरमानी ना करें। अल्लाह एक है, कबूल करें और उसे मुंह ना मोड़ें, यानी कि उससे मुंह ना मोड़ें, अल्लाह से मुंह ना मोड़ें। अल्लाह से मदद मांगे और किसी और से मदद ना मांगे, उस पर भरोसा करें और उसी पर इत्मीनात करें और किसी पर
भरोसा ना करे, अल फतुल रब्बानी पेज नंबर 151। तो मेरे भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह वो अल्लाह के वली थे, उनकी जो तालीम थी वो अल्हम्दुलिल्लाह वही तालीम है जो हमारे अल्लाह के नबी ने सहाबा को दी और सहाबा से हम तक पहुंचती आ रही है, और उसी तालीम को भाई अल्हम्दुलिल्लाह 1438 साल से आज तक असहाबुल हदीस, अहले सुन्नत वल जमात भाई उसको आगे फैला रहे हैं। लेकिन ये लोग मेरे भाई जो कुरान हदीस से जो मतलब तालीम साबित है उसको तो छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि वो हम्बली थे। लेकिन जो गुमराही की तालीम है उसको एकदम मजबूती से थाम लेंगे, क्यों? क्योंकि हम हनफी हैं। तो ये दोगलापन है मेरे भाई। जी 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 जी। और भाई जो पीर होता है, अगर भाई वो पीर उनको मानते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह को, तो उनके जो मुरीद हैं उनको भी हम्बली बनना चाहिए ना। ये क्या है मेरे भाई कि मेरा जो पीर बाबा है गौसे आजम है वो हम्बली मसलक पे है और मैं उनका मुरीद मैं हनफी मसलक पे हूँ, ये कौन सा दोगलापन है भाई? भाई हमारे अल्लाह के नबी और हमारे प्यारे साहबा भाई वो मुत्तबे सुन्नत थे, तो हम भी मुत्तबे सुन्नत हैं। हमारे अल्लाह के नबी क्या थे, हमारे साहबा क्या थे? क्या वो हनफी थे, मलकी थे, शाफई थे, हम्बली थे? भाई वो कौन थे? वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम थे, मुत्तबे सुन्नत थे, अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस थे। तो हम भी वही हैं। जी 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 जी, सही बात है। ठीक है, अच्छा भाई अब रखते हैं। और जो ये भाई ये सब जो तालीमें हैं, ठीक है, ये भाई मैं आपसे दावा कर रहा हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने मुर्दों को जिंदा किया बिना अल्लाह की मदद के। ये उनके नाम से एक बहुत बड़ा बहतान है। ठीक, वो हमारे वली अल्लाह है, अहले हदीस जमात उनको भाई अल्लाह का वली मानती है। जी जी, उन्होंने मिलावट किया है। मिलावटें की है उन्होंने। हाँ मिलावट भाई देखिए, अब जैसे मेरे भाई अब ये फजाइल अमाल है, बहश्ती जेवर है, मलफूजात अल हजरत है, फतावा रिजविया है, बुनियतुत तालिबीन है। तो ये जो सारी किताबें हैं ये आसमानी किताबें नहीं है, ये इंसानों ने भाई इसको लिखा है। तो जो इसमें बातें कुरान हदीस से साबित है हम उन बातों को लेते हैं, और जो कुरान हदीस से साबित नहीं है, जिसने अपनी अकल से लिख दी, जिसका कोई सबूत नहीं है, भले ही वो देखने में भाई वो कितनी अच्छी क्यों ना लगे, भाई हम उसको काबिल हुज्जत हम नहीं मानते हैं। जी 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 जी, सही ठीक है, वो मिलावट इसमें हुई है, ठीक है, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह का ये अकीदा नहीं था कि तावीज पहनना चाहिए, ना ही उनका अकीदा भाई मतलब भाई ये था कि मतलब कव्वाली होना चाहिए, ना ही उनका अकीदा ये था कि उन्होंने अपनी पावर से मुर्दों को जिंदा किया। ठीक है, अब ये बात कहाँ लिखी हुई है अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने तो आज तक भाई नहीं पढ़ी कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया अपनी पावर से। जी जी जी, ठीक है, रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह जी। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में रखना जी। चल भाई जल्दी चले।